Hello dear students. Students, we are looking chapter quantum physics, and in quantum physics today we will see Schrodinger's time dependent wave equation. So what is Schrodinger equation? वो देख लेते हैं पहले. So here means consider a particle and that particle is associated with wave. तो ये हमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में देखा है. अगर मूविंग पार्टिकल है तो उसके साथ एक वेव प्रेजेंट रहती है. ये हमने लास्ट टाइम और लास्ट लेक्चर में देखा था. सो यार फॉर दिस वेव मीन्स द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एज स्क्रॉडिंजर्स इक्वेशन. सो वंस अगेन सी इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डी ब्रॉगली वेव associated with moving particle. So this equation describes the motion of a particle. तो ये इक्वेशन का यूज क्या होता है? टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए पार्टिकल. तो अभी इसका डेरिवेशन हम देख लेते हैं. स्क्रॉडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन. फॉर दिस डेरिवेशन, नाउ हियर इज अ पार्टिकल. कंसिडर दिस इज अ पार्टिकल and this particle is moving along positive x direction. Suppose v is a velocity of a particle and m is a mass of a particle. तो ये सब हम नोट कर लेते हैं. So here consider a particle of mass m moving in the positive direction of x axis with velocity v. Now total energy of a particle is given by this equation, that is the total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. ये हमारा जनरल इक्वेशन है. एंड मैथमेटिकली वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस वे. E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वी. सो हियर मीन्स द कैपिटल V का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी. एंड स्मॉल v इज फॉर वेलोसिटी. ओके, सो हियर दिस टर्म इज फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड दिस टर्म इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी. Now if we multiply and divide by m to this term, तो ये टर्म को अगर हम m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन कैसे बनेगा? सो हियर इज द इक्वेशन. E इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m. नाउ mv मीन्स व्हाट? सो दैट यू नो दैट इज नथिंग बट मोमेंटम. सो हियर इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस. E इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v. So students, remember this is one important part of this derivation. Here equation energy का जो ये equation हमने लिखा है वो important part है इस derivation का. So we will use this equation in next part of this derivation. So next है, here the wave associated with moving particle can be represented by wave function psi of xt. And here psi of xt is equal to a into e raised to minus I omega t minus kx. तो ये जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन का इक्वेशन यहाँ पे लिखा है a into e raised to minus I omega t minus kx. Now here if we put values of omega and k then equation becomes like this. psi means ये इक्वेशन को ये इसको psi कहते हैं. psi of xt is equal to a into e raised to minus I e upon h cut into t minus p upon h cut into x. Now students listen, here we substituted value of omega and k. Means omega is equal to e upon h cut and k is equal to p upon h cut. ये दोनों वैल्यू कैसे है वो भी हम एक बार देख लेते हैं. So here means we know that, look here, means we know energy of each photon is given by E is equal to h nu which is equal to h upon 2 pi. अगर हम इसको h nu को 2 pi से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते तो कैसे इक्वेशन बनेगा? सो लुक हियर इज द h upon 2 pi into 2 pi nu. But 2 pi nu means what? It is omega and h upon 2 pi is equal to h cut. So here E is equal to h cut omega और omega is equal to E upon h cut. समझ में आए? So वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया है.
सिमिलरली वी कैन राइट फॉर के ऑल्सो, मतलब के का भी एक्सप्लेनेशन आप सुन लो. सो हियर मीन्स फ्रॉम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. यहाँ पे भी अगर हम 2 पाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो कैसे इक्वेशन बनेगा, एच अपॉन लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई अपॉन 2 पाई. बट एच अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू व्हाट, एच कट, एंड 2 पाई अपॉन लैम्बडा दैट इज इक्वल टू के. सो के इज इक्वल टू पी अपॉन एच कट. तो समझ में आए, आप फिर से एक बार ठीक तरह से देख लो तो आप लोगों को ये तुरंत समझ में आ जाएगा. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग हियर मीन्स द वेव फंक्शन. So wave function here we have written in this way, a into e raised to minus I inside the bracket e upon h cut into t minus p upon h cut into x. Now here h cut is common, and that's why we can write this equation in this way, that is psi of xt is equal to a into e raised to minus I upon h cut inside the bracket et minus px. So students, so this wave equation is important for this derivation. ये इक्वेशन अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आप लोग इजीली ये डेरिवेशन लिख सकते हो. सो रिमेंबर साई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस आई अपॉन एच कट इनसाइड द ब्रैकेट ई टी माइनस पी एक्स. नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी. अगर इस इक्वेशन को हम टी विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे बनेगा इक्वेशन. सो लुक हियर, डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई अपॉन एच कट ई ए इंटू ई रेस टू माइनस आई अपॉन एच कट इनसाइड द ब्रैकेट ई टी माइनस पी एक्स. तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, तो एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला यूज किया है. मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर डेरिवेशन वी नो that is d upon dx into e raised to 2x is equal to 2 into e raised to 2x. जो भी x का मल्टीप्लायर है या t का मल्टीप्लायर है तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं. now here we have differentiated with respect to t, and what are the multipliers of t, that is minus I upon h cut ये into e. so that here we have written behind that term. So here minus I upon h cut into e a into e raised to minus I upon h cut. तो जो बाकी फंक्शन वैसे की वैसे ही रहेगा. So next here look here means the from equation number 2 psi of xt is equal to a into e raised to minus I upon h cut inside the bracket et minus px. So we can put this function as it is in this equation. तो इक्वेशन कैसे बनेगा देखो. सो देयरफॉर डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई अपॉन एच कट इंटू ई इंटू साई. सो वंस अगेन लुक हियर, यहाँ से ए से लेके यहाँ तक पूरा जो इक्वेशन है वो साई का इक्वेशन है, एंड दैट्स वाई हियर वी हैव रिटन इन दिस वे. सो हियर इफ वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आई, तो यहाँ पे मतलब ये साइड में अगर आई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते तो इक्वेशन कैसे बनेगा वो देखो. सो हियर आई स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने डिटेल में नहीं लिखा है बट यू कैन अंडरस्टैंड. हियर यहाँ पे क्या आएगा, आई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई इंटू एच कट. सो डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आई एच कट इंटू ई साई. तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 वो आपको पता ही है. सो बाय दैट हियर मीन्स वी कैन राइट इक्वेशन इन दिस वे, एंड हियर वी कैन राइट इक्वेशन फॉर ई साई. जस्ट हियर अरेंज इक्वेशन फॉर ई साई, then equation becomes I h cut del psi upon del t. So this is one of the important equation, one more important equation for this derivation. Next again here we will write the same equation, that is equation number 2, that is the equation of wave function. तो क्या है देखो फिर से, psi of xt is equal to a into e raised to minus I upon h cut et minus px. तो सो लास्ट पार्ट में या इसके पहले हमने क्या किया था, उसको डिफरेंशिएट किया था विथ रिस्पेक्ट टू टी. नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स। तो अभी एक्स से डिफ्रेंशिएट करते हैं। देन इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस, डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू आई अपॉन एच कट p a into e raised to minus I upon h cut inside the bracket e t minus px। तो मैंने आपको इसके पहले ही वो फॉर्मूला बताया है, मीन्स द एक्सपोनेंशियल टर्म का, मीन्स द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म इज लाइक दिस। तो जो भी मल्टीप्लायर है एक्स के, वो टर्म के पीछे हम लिख लेते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लायर, p एंड अलॉन्ग विथ p माइनस आई अपॉन एच कट। तो यहाँ पे देखो वही हमने लिखा है, और यहाँ पे 2 टाइम निगेटिव साइन है, दैट्स वाई हियर इट बिकेम पॉजिटिव। सो आई अपॉन एच कट इंटू पी ए इंटू ई रेज टू माइनस आई अपॉन एच कट इनसाइड द ब्रैकेट ई टी माइनस पी एक्स। तो समझ में आया आपको यहाँ पे कैसे है। नाउ ये जो इक्वेशन है वो फिर से हम इस तरह से लिखते हैं, यर डिफ्रेंशिएट अगेन अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो फिर से उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर एच कट स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट इक्वेशन विल बी सेम एज अबव। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर फिर से डिफ्रेंशिएट करते तो आई स्क्वायर, आई से आई, ये जो मल्टीप्लायर है वो फिर से एक बार आ जाएंगे, and equation will be like this. So here means again here a into e raised to minus I upon h cut inside the bracket e t minus px, ये क्या है? So this is nothing but psi. So here is the, here if we are writing it as a, then equation becomes del square psi upon del x square is equal to I square upon h cut square p square psi। अगर हम ये इक्वेशन पी स्क्वायर साई के लिए अरेंज करते तो कैसे रहेगा? सो हियर पी स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1। तो वो यहाँ पे करके इज द इक्वेशन इज लाइक दिस, माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो समझ में आया। तो यहाँ पे हमने पी स्क्वायर साई का इक्वेशन लिख लिया है। तो नेक्स्ट है कंसीडर इक्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अभी जो हमने जो इक्वेशन एनर्जी का इक्वेशन लिखा था वो इक्वेशन एक बार यहाँ से फिर से लिख लिया है। सो ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वी कैन राइट द इक्वेशन इन दिस वे ऑल्सो। अगर हम ये इक्वेशन को वेव फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे आएगा, ई साई is equal to p square upon 2m into psi plus v psi. So here if we put value of e psi in this equation and p square psi in this equation, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं या इक्वेशन बनाए ई साई के लिए और पी स्क्वायर साई के लिए, वो इक्वेशन अगर इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो इक्वेशन कैसे रहेगा, here take value of e psi and p square psi from equations which we solved, then equation becomes like this। e psi is equal to क्या है, I h cut del psi by del t, and p square psi is equal to minus h cut square upon 2m del square psi upon del x square plus v psi। So here finally here equation if we arrange in this way, if we take v means just if we arrange the terms in this way, मतलब सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिखा है और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, then equation will be like this। So students, this is nothing but the Schrodinger's time dependent equation। So here once again यहाँ पे लिख लेते हैं वो equation। So minus h cut square upon 2m del square psi upon del x square plus v psi is equal to I h cut del psi by del t। This equation is called as Schrodinger's time dependent wave equation। So all of you remember, this is very important article for this chapter, and this equation is also very important, and from this equation only here we have to derive the next equation, that is the Schrodinger's time independent equation।
तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, तब तक ये आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लो और प्रैक्टिस करो, एक दो बार लिख के देखो, तभी आप लोगों को वो इजी लगेगा। ओके, थैंक यू।